کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جس زمین پر آپ کھڑے ہیں اس کے ٹھیک نیچے کیا ہے؟ ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، لیکن انسانی تاریخ کا سب سے بڑا راز اوپر نہیں بلکہ نیچے دفن ہے۔ پرانی کہانیوں میں ذکر ملتا ہے چھپے ہوئے راستوں کا، ایسے راستے جو تباہیوں سے بچنے کے لیے بنائے گئے، جہاں عبادت کی جاتی تھی اور جہاں بڑی بڑی حکومتوں نے اپنے گہرے سیکرٹس چھپائے۔ ٹرکش شہر ڈیرن کویو، جہاں 20,000 لوگ زمین کے اندر رہتے تھے۔ امریکہ کی وہ قدیم کہانیاں جہاں لوگ تباہی سے بچنے کے لیے نیچے اتر گئے، اور رشیا کا وہ ریسٹرکٹڈ پہاڑ جس کے اندر دنیا کا سب سے بڑا کمپلیکس بنا ہے۔ یہ 3 الگ الگ جگہیں لیکن ایک ہی سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ انسانوں نے ہمیشہ اپنے سیکرٹس کو، اپنے رازوں کو زمین کے نیچے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ آخر اس گہرائی میں کیا ہے اور وہاں جانے سے آج بھی کون روک رہا ہے؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، زمین کے نیچے ایک پوشیدہ دنیا کا پہلا ٹھوس ثبوت 1960 کی دہائی میں ٹرکی میں سامنے آیا۔ کیپیڈوشیا میں ایک شخص اپنے گھر کی مرمت کر رہا تھا۔ اس نے ایک دیوار گرائی اور دیکھا کہ اس کے پیچھے فاؤنڈیشن کے پتھر نہیں بلکہ ایک سرنگ تھی۔ وہ سرنگ آگے بڑھتی بڑھتی راستوں میں تقسیم ہوتی ہوئی زمین کی اور گہرائی میں اترتی گئی۔ اس نے جو دریافت کیا تھا وہ ایک ایسے شہر کا داخلی راستہ تھا جو صدیوں سے بند تھا، جس کا وجود بھلا دیا گیا ہے۔ آج ہم اس جگہ کو ڈیرن کویو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ زمین کے نیچے تقریباً 280 فیٹ کی گہرائی میں موجود ہے اور ابھی تک کی معلومات کے حساب سے 18 لیولز تک پھیلا ہوا ہے۔ آرکیولوجسٹ کا اندازہ ہے کہ اس میں ایک وقت 20,000 لوگ سما سکتے تھے، جہاں خاندان، مویشی، غذا کے ذخائر اور پانی کے لیے جگہ بھی تھی۔ عملی طور پر یہ ایک چھوٹے سے قصبے کے برابر تھا، لیکن پوری طرح زمین کے نیچے پوشیدہ۔ اس کا اسٹرکچر اور ڈیزائن کافی حیران کن ہے۔ تنگ راستے بڑے کمیونل ہالز میں کھلتے ہیں، گول پتھر کے دروازے جن میں سے کچھ کا وزن آدھا ٹن ہے۔ وینٹیلیشن شافٹس کئی لیول سے گزرتی ہوئی تازہ ہوا پہنچاتی تھی۔ کچھ اتنی گہری ہیں جتنے جدید ہائی رائز ٹاورز کو الٹا کر دیا جائے۔ یہاں کنویں موجود تھے جن سے پانی نکالا جاتا تھا۔ اسٹوریج رومز، باورچی خانے اور چھوٹے چیپلز سب اس والکینک پتھر میں تراشے گئے تھے۔ ڈیرن کویو جلد بازی میں کھودا گیا کوئی عارضی شیلٹر نہیں تھا۔ یہ ایک مکمل طور پر چلتا ہوا شہر تھا جو زمین کے نیچے لمبے عرصے تک زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدے انجینئر کیا گیا تھا۔ پر اسے بنایا کیسے گیا تھا یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے۔ والکینک پتھر میں ایک کمرہ تراشنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن لاکھوں کیوبک فیٹ پتھر کو کھودنا، کمروں کو مضبوط کرنا، ایسی ایئر شافٹس کاٹنا جو آج بھی کام کرتی ہیں، اور یہ سب کچھ صرف ہاتھ کے اوزاروں سے کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ اسے 100 BC یعنی قریب 2100 سال پہلے کھودا گیا تھا، لیکن پھر بھی وینٹیلیشن شافٹس کی پریسیشن اور ہٹائے گئے پتھر کا اتنا بڑا والیوم ان اوزاروں سے میل نہیں کھاتا جو تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس وقت دستیاب تھے۔ جدید انجینئرز نے تسلیم کیا ہے کہ آج بھی ایسے اسٹرکچر کو کاٹنا اور برقرار رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، لیکن آخر اسے بنایا ہی کیوں گیا؟ اس کی عام وضاحت یہ ہے کہ یہ ایک پناہ گاہ کے طور پر کام کرتا تھا۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو کیپیڈوشیا پر بار بار حملے ہوئے ہیں جو پرشینز، بیزنٹینز اور منگولز نے کیے تھے۔ زمین کے نیچے غائب ہو جانے کی صلاحیت ایک مضبوط ڈیفنس ہوتی ہے۔ اس کانسیپٹ سے دیکھا جائے تو ڈیرن کویو ایک بڑا بنکر تھا، ایک ایسی جگہ جہاں ہزاروں لوگ اوپر کے خطرے سے بچنے کا انتظار کر سکتے تھے۔ لیکن یہ ایکسپلینیشن اس بات کا جواب نہیں دیتی کہ اگر مقصد صرف تھوڑے وقت کے لیے پناہ لینا تھا تو یہاں عبادت گاہیں اور شراب خانے کیوں بنائے گئے؟ یعنی مقصد جو بھی تھا ٹیمپرری شیلٹر نہیں تھا۔ کچھ ریسرچرز یہ تجویز بھی دیتے ہیں کہ پتھر میں تراشی گئی مذہبی جگہیں روحانی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ڈیرن کویو کو لیئر بائی لیئر، جنریشن آفٹر جنریشن بڑھایا گیا تھا۔ ڈیرن کویو 1960 کی دہائی تک گمنام رہا، اس لیے نہیں کہ یہ تباہ ہو گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کے داخلی راستے بند کر دیے گئے تھے۔ صدیوں تک اوپر رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے گھروں کے بالکل نیچے کبھی ایک پورا شہر آباد ہوتا تھا، یہاں تک کہ اب بھی اس کے کچھ حصے بند اور کچھ راستے بلاکڈ ہیں۔
आर्कियोलॉजिस्ट को शक है कि यहाँ इससे भी गहरे लेवल्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनका नक्शा कभी नहीं बनाया गया। यहाँ के लोकल्स का दावा है कि ये सुरंगें मीलों तक फैली हुई हैं, जो डेरिनकुयू को कैपाडोशिया में ही दूसरी अंडरग्राउंड सिटीज को आपस में जोड़ती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आजकल के हाईवेज होते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड। अगर ये सच है तो अब तक जो कुछ जाहिर हुआ है वो इस सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। डेरिनकुयू शायद सबसे बड़ा और मशहूर हो, लेकिन ये अकेला नहीं है। ये सिर्फ एक दरवाजा है एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड नेटवर्क का, एक जमी बोझ दुनिया जो सेंट्रल टर्की के नीचे फैली हुई है और जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया। अगर कैपाडोशिया की सुरंगें लोगों को महफूज रखती थीं, तो मेक्सिको में कदीम पिरामिड्स के नीचे की सुरंगें एक बहुत ही अजीब अंदाज में बंद की गई थीं। टियोटिहुआकान के खंडरात के नीचे, जो कभी 1 लाख से ज्यादा लोगों का शहर था, आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे अंडरग्राउंड रास्ते दरियाफ्त किए हैं जिन्हें तकरीबन 2000 साल से जानबूझकर पोशीदा रखा गया था। सबसे मशहूर दरियाफ्त 2003 में हुई, जब भारी बारिशों ने टेम्पल ऑफ द फेदर्ड सर्पेंट के पास एक सिंक होल बना दिया। मकामी आर्कियोलॉजिस्ट सर्गियो गोमेज ने खुद को उस गड्ढे में उतारा और एक ऐसा दाखिली रास्ता पाया जिसे बड़े पत्थरों से जानबूझकर बंद किया गया था। अंदर दाखिल होते ही उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसी सुरंग में दाखिल हो गया है जो सीधी पिरामिड्स के नीचे जाती है। ये रास्ता तकरीबन 330 फीट तक फैला हुआ था और मंदिर के ऐन मरकज के नीचे कुछ बंद कमरों पर खत्म होता था। गोमेज और उसकी टीम ने जो दरियाफ्त किया वो सिर्फ एक तामीराती कमाल नहीं था, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री थी जो आज भी माहिरीन को उलझन में डाल देती है। सुरंग के अंदर ऑफरिंग्स थीं जिनमें जेड यानी सब्ज कीमती पत्थर, सीपियां और हजारों कीमती चीजें शामिल थी। इनमें उम्दा मिट्टी के बर्तनों से लेकर अजीबो गरीब मुजस्मे शामिल थे, लेकिन सबसे परेशान कुन दरियाफ्त उन कमरों में जमा लिक्विड मरकरी था, जो रोशनी में स्पार्कलिंग वाटर की तरह चमक रहा था। कोई कदीम प्री कोलंबियन सकाफत अंडरग्राउंड सुरंगों में मरकरी क्यों लाकर बंद करेगी? ये सब्सटेंस नायाब और इंतहाई जहरीला है और इसकी माइनिंग के लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। दहाइयों तक किसी को यकीन नहीं था कि अमेरिका में मरकरी इस्तेमाल होता था, जब तक कि इन कमरों में इसकी तस्दीक नहीं हो गई। कुछ तहकीककार कहते हैं कि ये सब्सटेंस अंडरवर्ल्ड के दरिया या झील की अलामत था, एक आईने जैसा सरफेस जो जिंदगी और मौत के दरमियान हद को जाहिर करता है। दूसरे इसे जमीन के नीचे बनाए गए एक कॉस्मिक लैंडस्केप का हिस्सा समझते हैं, कायनात का एक मुकद्दस छोटा मॉडल जहां ट्रांसफॉर्मेशन की रसूमात अदा की जाती थी। सुरंग की इंजीनियरिंग इस राज को और गहरा करती है। इसकी दीवारों पर एहतियात से पीसा हुआ पायराइट और हेमेटाइट लगाया गया था। ये ऐसे मटेरियल्स थे जो दिए की रोशनी में सितारों भरे आसमान का मंजर पेश करते थे। यहाँ रिफ्लेक्टिव मिनरल से ढके हुए ऑब्स के निशानात भी मिले, जो शायद सैयारों या सितारों को जाहिर करने के लिए थे। ये डेरिनकुयू की तरह कोई छुपी हुई पनाहगाह नहीं थी, ये एहतियात से बनाई गई एक पूरी अंडरवर्ल्ड दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां पुजारी हुक्मरान तारीकी में उतरते थे ताकि तख्लीके कायनात की कहानियों को दोबारा जी सकें और खुदाओं से बात कर सकें। सुरंग को कदीम दौर में जानबूझकर बंद कर दिया गया था। बड़े पत्थरों ने रास्ता रोक रखा था और तकरीबन 2000 साल तक रसाई बंद थी। जिसने भी इसे बंद किया वो ये यकीन बनाना चाहता था कि कोई दोबारा दाखिल ना हो सके, लेकिन इसे बनाने की मेहनत भी बहुत ज्यादा हुई होगी। वॉल्केनिक पत्थर में से रास्ता निकालना, दीवारों को चमकीले मिनरल से सजाना, दूर दराज इलाकों से मरकरी लाना, ये मामूली काम नहीं थे, ये सोचे समझे पोशीदा काम थे। टियोटिहुआकान के पिरामिड्स सिर्फ आसमान की तरफ बुलंद होने वाले मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, बल्कि जमीन में गोता लगाने वाले गेटवेज भी थे। ऊपर एवेन्यू ऑफ डेड मीलों तक फैली थी, नीचे खुफिया सुरंगें दरियाओं, सितारों और कायनाती दुनियाओं को बनाती थी, जिन्हें आम शहरी कभी नहीं देख पाते थे। ये दोहरापन, ऊपर खुला मंजर, नीचे पोशीदा रसूमात, एक ऐसी सकाफत की निशानी करती हैं जहां सीक्रेसी भी उतनी ही जरूरी थी जितनी के ताकत। पेरू के एंडीज माउंटेन रेंज में चाविन डी वांटर का मकाम हमें कुछ और भी अजीब दिखाता है। ऐसी सुरंगें जो इंसानी दिमाग को तब्दील करने के लिए बनाई गई थी।
चाविन डी वांटर एक सेरेमोनियल सेंटर था जो 1200 से 500 बीसी के दरमियान उरूज पर था। पहली नजर में इसके पत्थर के मंदिर एंडीज के दीगर कदीम मकामात जैसे ही लगते हैं, लेकिन सतह के नीचे यानी सरफेस से नीचे गैलरीज और रास्तों का एक ऐसा नेटवर्क है जैसा इस इलाके में कहीं और नहीं मिलता। ये सुरंगें ना तो हजारों लोगों को बसाने के लिए थीं, ना ही हुक्मरानों को छुपाने के लिए। इन्हें आवाज, रोशनी और इंसानी परसेप्शन को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। जी हाँ, इस मकाम को स्टडी करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने इन गैलरीज को गूंजने वाले कमरे और डिसओरिएंटिंग लेबिरिंथ्स यानी भूल भुलैया करार दिया है। कुछ रास्ते इतने तंग हैं कि एक इंसान मुश्किल से गुजर सकता है। दूसरे अचानक बड़े कमरों में खुलते हैं जहां आवाज लगाने पर ऐसा लगता है कि वही आवाज वापस आपकी तरफ आ रही है, और वो भी हर डायरेक्शन से। 1992 में किसानों के एक ग्रुप ने चाइना की ज़ीजियांग प्रोविंस में एक तालाब को खुश्क करने का फैसला किया। नस्लों से पानी एक कुदरती गड्ढे को भर रहा था और मकामी लोग समझते थे कि ये सिर्फ एक कुदरती चीज है। लेकिन जब पानी पंप करके निकाला गया तो जो चीज सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। तालाब के नीचे एक बहुत बड़ी हाथ से तराशी गई गुफा का दाखिली रास्ता था, और ये अकेली नहीं थी। अगले कुछ सालों में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे ही कमरे दरियाफ्त हुए जिन्हें अब लोंगयू केव्स के नाम से याद किया जाता है। हर एक कमरा बहुत बड़ा है, ऊंची छतों, वसी हॉल्स और दीवारों पर हाथ के औजारों के वसी निशानात हैं। लेकिन इनकी तामीर का कोई तारीखी रिकॉर्ड, कोई तहरीर, कोई मकामी हिस्ट्री नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक कदीम सकाफत ने एक पूरा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स तराशा और फिर अपने वजूद के हर निशान को मिटा दिया। लोंगयू केव्स का स्केल वाकई हैरान कर देने वाला है। अलग अलग कमरे 100 फीट तक बुलंद हैं, जिनका फर्श इतना बड़ा है कि इनमें एयरक्राफ्ट हैंगर्स भी समा जाएं। अंदरूनी हिस्सा एहतियात से बनाया गया है, हर सतह पर एक जैसी छेनी के निशानात हैं। मजमूई तौर पर इन गुफाओं के लिए अंदाजन 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर निकालने की जरूरत पड़ी। जदीद औजारों के साथ भी ये एक बहुत बड़ा काम होता। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी ये तकरीबन नामुमकिन लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन्हें कम से कम 2000 साल पहले तराशा गया था, लेकिन किसी रिकॉर्ड में इनका जिक्र नहीं। कदीम चाइना जैसी सकाफत में जो रिकॉर्ड कीपिंग में इतनी एहतियात बरतते थे, इतने बड़े प्रोजेक्ट का तारीख से गायब हो जाना कैसे मुमकिन है? कुछ कहते हैं ये पत्थर की कानें थीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो दीवारों को सजावटी चिजल मार्क से क्यों फिनिश किया गया? और ये कमरे बिल्कुल खाली क्यों हैं? कोई मलबा नहीं, कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं। ये राज अभी तक राज है। जमीन के नीचे हमेशा से इंसानियत ने वो छुपाया है जो सबसे अहम है, शहर, हथियार और शायद ऐसे राज जिन्हें जानने की हमें इजाजत नहीं। सब तारीकी में दफन है, इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें खोदा जाए। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।